You only need to know what is the method to plot the position line. So I will tell you what is the method we use in all these different techniques. So before I set up the video and we start off with PLs, any doubt or query, anything you want to share, please go ahead. Yes, sir. Okay, great. So then let's jump into the video. Give me a minute, I'll set it up. So beta, this was the concept of sector lights. We saw this sector light on the chart also. We saw different sectors of the light. We also saw the obscured sector and the visible sector. Then after this we did I do the depth contour PL with you beta? This one? No, sir. Last was sector. Last was sector, sir. This is remaining still. Last was sector. Okay, very good. Then we will do the depth contour PL now. So this is what we did last. So let's proceed ahead. PL by depth contour. Depth contours are the lines drawn on chart joining positions having same depth of the seabed. Depth on chart are called as charted depths. Charted depths are given with respect to chart datum, which is usually the lowest astronomical tide level. Observed depth must be reduced or converted with respect to chart datum before they can be compared with charted depths. A conversion, the tidal variance with respect to the chart datum must be allowed to the observed depth. Okay, beta, just take 2 minutes and go through all these points one by one. सर ये लोअर एस्ट्रोनॉमिकल टाइड लेवल ये क्या है सर? ओके बेटा, बेटा ये एक रेफरेंस है लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड. नाउ यू सी जो टाइड्स सी में जनरेट होते हैं दे आर जनरेटेड बिकॉज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल कंडीशंस. एस्ट्रोनॉमिकल कंडीशन से हमारा मतलब है सन और मून की पोजीशन क्या है, वो डिसाइड करता है कि टाइड की हाइट कितनी होगी. Later on when we do tides we will go deep into it. Now किसी भी जगह पे अगर सन और मून की ऐसी कंडीशन है कि वहाँ पे लोएस्ट टाइडल लेवल बना है तो उसे हम बोलते हैं लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड LAT. उसी को हम लोग अपने चार्ट के रेफरेंस में यूज़ करते हैं. मीन्स अगर आपको किसी पॉइंट पे डेप्थ निकालनी है सी बेड की कितनी डेप्थ है तो हम किसके रेफरेंस पे निकालते हैं, लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड के रेफरेंस पे निकालते हैं. इज इट गेटिंग क्लियर बेटा? यस सर, थैंक यू सर. ओके ओके, लेट्स प्रोसीड अहेड नाउ. लेट्स सी दिस प्रैक्टिकली ऑन द चार्ट. Let's look at it through an example. At 1400 hours, a vessel drawing 7 meters
records under keel clearance or UKC of 45 meter by echo sounder. If the tide was 2 meters above the chart datum, calculate the charted depth at that particular time. Identify on the chart at that moment if vessel could be on a depth contour. Beta, just read the question carefully and try if you can find out what is the charted depth. कोशिश करके देखो. Sir, 50 meters. Very good, beta. 50 meters is the charted depth. Very good. Beta, other people also got it? Yes, sir. No, sir. बताओ. मिल गया बेटा या नहीं मिला? नहीं मिला सर. Okay, all right. Let me explain it to you. Let's see it on a whiteboard. Okay. Let us say बेटा ये हमारा seabed है. This is the seabed. And this is the water level right now. Assume करते हैं कि ये हमारी ship है. This is the ship. अब इस क्वेश्चन में उन्होंने बताया है कि हमारा ड्राफ्ट 7 मीटर्स है. So from here to here is 7 meters. Right beta, up to here clear? Yes, sir. Yes sir. अब बेटा दूसरी चीज जो उन्होंने क्वेश्चन में हमें बताई है वो ये कि जो UKC है अंडर कील क्लियरेंस वो कितनी है? 45 meters. Very 45 good. meter. 45 meters. So can you tell me what is the total depth of water or observed depth of water here? 2 meter. Very good. ये दोनों को हमने ऐड कर दिया और हमारे पास डेप्थ आ गई 52 meters. This is the observed depth. So अब बेटा ये जो observed depth होती है किसी भी पॉइंट पे जो डेप्थ होती है वो किसके इक्वल होती है? जो भी चार्ट पे डेप्थ दी गई हो, चार्ट पे जो भी डेप्थ दी गई हो उसे बोलते हैं चार्टेड डेप्थ, शॉर्ट में CD. अगर उसमें हाइट ऑफ टाइड को ऐड कर दिया जाए, हाइट ऑफ टाइड को ऐड कर दिया जाए, HT लिख देता हूं मैं, हाइट ऑफ टाइड, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें ऑब्जर्व्ड डेप्थ मिलेगी. सो ऑब्जर्व्ड डेप्थ 52 meters is equal to charted depth plus height of tide. अब बेटा height of tide इस क्वेश्चन में क्या दी गई है? 2 meters sir. Above. Very good. So that means charted depth plus 2 meters should be equal to how much? 52. 52. So that tells us charted depth कितनी हो गई बेटा? 50 meters sir. Very good. This is how we get the charted depth, 50 meters. मैं इसे यहाँ पे दिखा भी देता हूँ. अब बेटा जो चार्टेड डेप्थ होती है, let us say this is lowest astronomical tide, LAT. LAT का लेवल ये है, मैंने यहाँ मार्क कर दिया. Let's mark it in red color. This is LAT. LAT के नीचे जो ये डेप्थ है इसको बोला जाता है चार्टेड डेप्थ.
दिस इज व्हाट इज चार्टेड डेप्थ। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा ना, चार्टेड डेप्थ्स आर विद रेफरेंस टू LAT, और LAT से ऊपर पानी का लेवल कितना है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ टाइड। ओके, लेट्स कॉल दिस एज HT, height of tide. So charted depth plus height of tide is equal to observed depth, which is 52 meters. So अब बेटा ये जो लेफ्ट साइड में डायग्राम आपको दिख रही है, इससे क्लियर हो गया? इसको ध्यान से देखो, अभी भी कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर सर। वेरी गुड। इसकी एक स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा लेके रख लो। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन रेफर टू इट लेटर ऑन। ओके सर। Okay, very good. Let's now go back to the depth contour PL. So क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो तो हमने सॉल्व कर लिया। हमें चार्टेड डेप्थ पता चल गई कि इस केस में चार्टेड डेप्थ 50 मीटर्स है। सो अब हम आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई ऑन चार्ट एट दैट मोमेंट इफ वेसल कुड बी ऑन ए डेप्थ कॉन्टूर। लेट्स सी। So first and foremost, we convert the given depth to charted depth. UKC 45 meters, draft 7 meters. This gives us an observed depth of 52 meters at that point of time. Tide 2 meters above chart datum. So the charted depth at that time is 50 meters. Now, if you see on the chart, this depth contour on the chart is depth contour for 50 meters. This is the 50-meter depth contour. So if the charted depth at that time was 50 meters, that means the vessel is somewhere on this yellow highlighted depth contour, and this depth contour now acts as a PL. So is it clear now बेटा? सर फिर ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा सर ये कंटूर? हाँ बेटा, ये जो डेप्थ कॉन्टूर है PL, ये स्पेशल PL है विच इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन। इसको हम बोलते तो PL ही हैं, विच मीन्स ए पोजिशन लाइन, बट दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। दिस इज द ओनली PL विच इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ओके सर, एक क्वेश्चन था। बोलो बेटा। जैसे कि एक होता है हमारे पास कंटूर, ये वाला कि अलाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ सेम लेंथ सेम डेप्थ, ये 50 मीटर का कंटूर है। और जैसे इस आसपास भी कुछ डेप्थ लिखी हुई हैं सर्कल में बना के, या फिर कुछ ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं, उनमें और इसमें क्या होगा सर? मैं समझा नहीं बेटा, तुम्हारा डाउट एक बार दोबारा बताओ। सर जैसे कि ये डेप्थ कंटूर है, ये तो क्लियर हो गया कि इस लाइन पे जहाँ कहीं भी ये जहाँ तक जा रहा है वहाँ पे 50 मीटर होगा। इसके आसपास ये नंबर्स लिखे हैं, जैसे डेप्थ लिखी हुई है ये, इसमें और इसमें फर्क क्या होगा सर? जैसे दो डेप्थ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वहाँ पे कितनी डेप्थ होगी सर? ओके, लेट मी शो यू द चार्ट बेटा, जस्ट गिव मी अ मिनट। उस पर जूम इन करते हैं, देन लेट अस सी। सब पूछ रहा था। 1 मिनट बेटा, लेट्स सॉल्व वन डाउट, फिर अगले पे चलते हैं। ये लो बेटा, ये हमारे पास 50 मीटर कॉन्टूर आ गई। यू कैन सी दिस इज 50 मीटर डेप्थ कॉन्टूर। इसके आसपास डेप्थ हैं, देखो यहाँ पे 46 है, यहाँ पे 53 है। अब तुम्हारा डाउट बताओ बेटा। सर इसका मतलब क्या है? जैसे ये 53 आपने राउंड किया है, इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट के नीचे डेप्थ 53 है?
दैट इज राइट बेटा, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जो डेप्थ है वो 53 मीटर्स है, चार्टेड डेप्थ। और लेट्स से जो हमारा 50 मीटर का कंटूर था और यहाँ से 53 तक, इसके बीच में कितनी डेप्थ होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा? यस सर। ओके, ये हमें कुछ नहीं पता बेटा। इट कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन 50 एंड 53। कहीं पे 51 हो सकती है, कहीं पे 52 हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है बेटा। but not less than 50. यस, नॉट लेस देन 50, 50 से कम नहीं होगी बेटा। अगर 50 से कम होगी तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। ये 30 मीटर कॉन्टूर देख रहे हो बेटा? यस सर। Yes, sir. इसके बाहर कोई भी डेप्थ 30 मीटर से कम नहीं होगी, और अगर कहीं पे है तो ऐसे शो किया होगा बेटा, देख रहे हो 29? Yes, sir. अब समझ में आ गया बेटा? यस सर, मेरे को पूछना यही था कि जैसे 29 सर्कल करके लिखा है, तो मतलब वहां जहां तक ये सर्कल है उसके अंदर 29 है, बाकी 30 या 30 से ऊपर है। दैट्स करेक्ट बेटा, राइट। ओके सर, ओके। ओके, अब बोलो बेटा, नेक्स्ट आउट। सो ये मतलब चार्टेड डेप्थ है, लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड पे डेप्थ दी हुई है हमें। दैट इज राइट बेटा। अगर लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड जितना टाइडल लेवल है तो हमें डेप्थ यहाँ पे इतनी मिलेगी। मतलब लोएस्ट टाइड है, ठीक है। या दैट इज द लोएस्ट टाइड। सर तो फिर जब कैलकुलेशन करते हैं सेफ्टी कंटूर वगैरह की, तब तो हाई टाइड लो टाइड करते हैं, तो प्लस माइनस इसमें भी होता है, फिर तब क्यों नहीं करते? आई डिडंट गेट यू बेटा, दोबारा से पूछो। जब हम सेफ्टी कंटूर सेफ्टी डेप्थ की कैलकुलेशन करते हैं एक्टिस पे, राइट। हाँ सर, तो प्रॉपर नेट यूकेसी ग्रॉस यूकेसी वगैरह निकालने के लिए तब हम एडिशन माइनस करते हैं, हाई टाइड है लो टाइड है। ओके बेटा, जब भी आप सेफ्टी डेप्थ निकालते हो ना, तो हम लोग चार्टेड डेप्थ के रेफरेंस पे ही उसे निकालते हैं। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जो टाइड का लेवल है वो इससे ऊपर ही होगा, इससे नीचे नहीं होगा। लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड से नीचे हमारा टाइडल लेवल नहीं जाता है। तो हम लोग अपनी जो डेप्थ है उसी के बेसिस पे निकालते हैं ताकि हमें मैक्सिमम सेफ्टी मिले। अब अगर आपका टाइड 1 मीटर लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड के ऊपर है तो आपको 1 मीटर ज़्यादा डेप्थ मिलेगी ना, विच इज़ सेफ। So that is why we consider the LAT for our safety depths. We do not consider the height of tide. समझे बेटा? Sir, one more question, sir. बोलो जी। Sir, yeah, in this over here you are showing like this depths what are given on the chart are the lowest astronomical tide depths. But earlier we have always learned that, sir, this is the chart datum, that there is a reference line from where we get the depths on the chart. ओके बेटा, LAT इज द चार्ट डेटम। लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड ही चार्ट डेटम होता है। Okay, okay, sir. Okay. ओके, गंगाधरी शक्तिमान है। अच्छा, okay, sir. ओके, और बताओ बेटा, अगला डाउट। ये देखो बेटा, ये देखो, ये चीज को पढ़ना बेटा, इसको ध्यान से पढ़ो। यस सर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर। वेरी गुड। और बेटा, और डाउट? Okay, let's go back to the video now. So we are aware about the depth contour position line. Let's proceed ahead.
आवाज नहीं आ रही सर। ओके, लेट मी रिपीट इट वंस। बेटा कभी भी बीच में आवाज़ अगर मिस हो जाए तो आपने मुझे बता देना है, आई विल स्टार्ट इट अगेन। ओके सर, थैंक यू। Acts as a PL. Celestial PLs. अब आवाज़ आ रही है बेटा? यस सर, गॉट इट सर। वेरी गुड। Celestial observations, when solved, provide a position through which to draw the PL and the direction of the PL. The position through which the PL is drawn depends on the method deployed for solving the celestial observation. The direction of the PL in every case of celestial position line is perpendicular to the azimuth of the celestial body. In case of latitude by meridian altitude, the azimuth can be either north or south. Thus, in case of latitude by meridian altitude, the direction of the PL, which is like any other case perpendicular to azimuth, is specifically east-west. Celestial PLs are represented on chart by single arrows at each of its ends. Okay, so beta just go through, take 2 minutes and just go through all these points. Okay, now let's see this actually on the chart कि अगर हमें सेलेस्टियल पीएल दे दी जाए तो हम उसे चार्ट पे कैसे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे, हर एक मेथड में पीएल कैसे मिलती है हमें, और फिर हम देखेंगे कि उसे चार्ट पे कैसे प्लॉट करते हैं। लेट्स सी। Now let's look at the various methods of solving the sides, and based on each method, the position through which to draw the PL. In latitude by meridian altitude cases, the position through which to draw the PL is observed latitude and DR longitude. Direction of the PL is perpendicular to azimuth, and in this case, specifically east-west. Longitude by chronometer, position through which to draw the PL is DR lat, observed long. Direction of the PL perpendicular to azimuth. Meridian method, position through which to draw the PL, observed lat, DR long, and direction is perpendicular to azimuth. Polaris or the pole star, observed lat, DR long, perpendicular to azimuth. And lastly, intercept method, we draw it through a point called as ITP, intercept terminus point, and the direction is perpendicular to azimuth. So beta, if you want, you can take a screenshot of this slide and keep it with you. This tells you कि हर एक मेथड में हमें पोजीशन लाइन को कैसे ड्रॉ करना होता है चार्ट पे। ओके सर। ओके, चलें बेटा आगे देखें चार्ट पे कैसे प्लॉट करते हैं। सर इन सब मेथड्स को आप बताओगे करके? हाँ बेटा, इन मेथड्स को हम देखेंगे। चार्ट वर्क में यूजुअली जो पीएल आपको दी जाती है वो 3 मेथड में दी जाती है, मेरिडियन ऑल्टीट्यूड,
लॉन्ग बाय क्रोन एंड इंटरसेप्ट। ये तीनों मैं आपको दिखाता हूँ। एक्स मेरिडियन और पोलारिस यूजुअली चार्ट वर्क में नहीं आती है। सो ये जो तीन मेथड हैं इनको हम चार्ट पे देखेंगे कैसे प्लॉट करना है। मेरिडियन ऑल्टीट्यूड बहुत सिंपल है, जो भी आपको लैटीट्यूड दिया जाएगा वही लैटीट्यूड आपकी पोजीशन लाइन होगी। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। Let us see long by Cron and intercept method, how it is plotted on the chart. Let's see. We'll try and understand all this through 2-3 simple examples. DR position 51 degrees 34 minutes north, 008 degrees 02 minutes west. Above DR position used for solving various celestial observations. Based on the results provided, we need to identify the method used for solving the observation and then accordingly draw the PL on the chart. The first case is star X observation gave observed long of 008 degrees 10 minutes west, azimuth 070 degrees true. In such cases where observed longitude is the result, such observations are solved by longitude by chronometer. In long by chron method, the PL is drawn through DR lat and observed long. You can see here, this is the DR lat. This one is the observed long. This one is the DR long. So it is where the DR lat intersects the observed long. Through this point, we draw the PL. Direction of the PL is perpendicular to azimuth. So if azimuth is 070 degrees true, we add 90 to it and subtract 90 to get the direction of PL as 160 degrees to 340 degrees true. And this blue line then with single arrow at each end becomes the PL for star X. So beta, have a good look at this PL, long by Cron PL plotted on the chart. समझ नहीं आया ये। ओके बेटा बताओ कि क्या चीज समझ में नहीं आई है। तो येलो वाला क्रॉस कैसे लगाया? ओके देखो बेटा, क्वेश्चन में उन्होंने हमें डीआर लैटिट्यूड दिया है 5134। यस। हमने ये जो लैटिट्यूड बनाया 5134 का बना दिया। ओके उन्होंने हमें डीआर लॉन्जिट्यूड भी दिया है 8 डिग्री 7 मिनट वेस्ट। सर हमने डीआर लॉन्जिट्यूड को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया 8 डिग्री 7 मिनट वेस्ट। तो ये पोजीशन क्या बन गई बेटा? डीआर पोजीशन। वेरी गुड, डीआर पोजीशन आ गई हमारे पास। अब उन्होंने क्वेश्चन में हमें ऑब्जर्व लॉन्जिट्यूड भी दिया 8 डिग्री 10 मिनट वेस्ट। हमने ऑब्जर्व लॉन्जिट्यूड यहाँ पे प्लॉट कर दिया। राइट ये देखो यहाँ लिखा है डीआर लेट एंड ऑब्जर्व लॉन्ग। दिस इज द पॉइंट वेयर द पीएल पासेस। इसको हमने यहाँ पे पोजीशन लाइन को ड्रॉ कर दिया। क्लियर हुआ बेटा? वो वाला पॉइंट 070 ऐड किया 90 माइनस किया, वो समझ नहीं आया। इसको परपेंडिकुलर है। वो भी बताता हूँ बेटा। जब भी कभी हम सेलेस्टियल पोजीशन लाइन को ड्रॉ करते हैं या प्लॉट करते हैं, उसकी डायरेक्शन कैसे पता चलती है? उसकी डायरेक्शन हमें पता चलती है एजीमुथ से। बॉडी का एजीमुथ क्या है? एजीमुथ का क्या मतलब होता है? एजीमुथ का मतलब है बियरिंग। बॉडी की बियरिंग क्या है या बॉडी की डायरेक्शन क्या है? हमें इस क्वेश्चन में बियरिंग दी गई 070। बियरिंग हमें पता चल गई। अब जो पोजीशन लाइन है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एजीमुथ ऑफ द बॉडी। तो अगर हमें 070 के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी हो तो वो कौन सी डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे बेटा? 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री। 160 एंड वेरी
वेरी गुड बेटा, देखो ये जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है 160340। ओके सर। ओके, okay, let's proceed ahead now and let us see the intercept position line. Let's look at the next example. Star Y observation gave an intercept of 2 miles towards azimuth 040 degrees true. When intercept is obtained as output of a celestial observation, the observation then has been solved by intercept method. In intercept method, the PL is drawn through ITP. Now in this case, azimuth is 040, intercept is 2 miles towards, DR position is here. So here is what we draw the DR on the chart. Then we draw the azimuth of the body, which in this case is 040 degrees true. Now intercept is 2 miles towards. Towards means from DR towards the body. So from DR we mark off a point 2 miles away on the azimuth line. And this is the ITP. This point is the ITP. Through this point, we draw a PL perpendicular to azimuth. So azimuth was 040. So PL direction becomes 130 to 310. And this segment represented by the black line here, this represents the intercept towards of 2 miles. ओके बेटा, ये समझ में आया बेटा? इसमें कोई डाउट है? आस्क मी। सर एजीमुथ का हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा? हमेशा बेटा, ऑलवेज सेलेस्टियल पीएल हमेशा एजीमुथ के परपेंडिकुलर ही होगी। सर इस केस में हम ऑब्जर्व्ड लैटिट्यूड एंड डीआर लॉन्ग नहीं लेंगे सर? बेटा इंटरसेप्ट में हमें ऑब्जर्व लैटिट्यूड नहीं मिलता है, ना ऑब्जर्व लॉन्ग मिलता है। इंटरसेप्ट में हमें इंटरसेप्ट ही मिलता है। बट सर जैसे आपने बोला था उस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, उसमें तो जो हमारा रिजल्ट था उसमें ऑब्जर्व्ड लैट और डीआर लॉन्ग लिखा था सर इंटरसेप्ट के केस में। ओके ओके ओके, नहीं बेटा मैं दोबारा से दिखाता हूँ। लेट मी गो बैक। ये देखो बेटा, इंटरसेप्ट मेथड सबसे नीचे वाला है। ओके सर, मैं एक्स मेरिडियन वाला सोच रहा था, सॉरी। राइट 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 राइट, क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ओके, लेट्स गो बैक। ओके, अब मुझे बताओ बेटा, और कोई डाउट अगर आ रहा है यहाँ पे? Okay, very good. So let us see one more intercept question to make it clear. Intercept is 2 miles towards. Towards means from DR towards the body. So from DR we mark off a point 2 miles away on the azimuth line. And this is the ITP. This point is the ITP. Through this point, we draw a PL perpendicular to azimuth. So azimuth was 040. So PL direction becomes 130 to 310. And this segment represented by the black line here, this represents the intercept towards of 2 miles. Now let's have a look at the last example. Star Z observation gave an intercept of 3 miles away, azimuth 130 degrees true. This is the DR position. Azimuth is 130 degrees true. Now intercept is away from the body. So from DR, it is not towards the body, it is away from the body in the opposite direction. So we extend this azimuth line in the opposite direction. Mark of a point from DR on this line 3 miles off. This point is the ITP. This represents 3 miles of away intercept. Through ITP, we draw the PL perpendicular to azimuth. And if azimuth is 130 degrees true, direction of the PL automatically becomes 040 to 220 degrees true. So
have a look at this one also beta. Let me know any doubts. Sir, this intercept concept is not clear, sir. बेटा इसमें क्या चीज क्लियर नहीं हुई आपको? सर ये पोजीशन लाइन ड्रॉ करते हैं तो सर इंटरसेप्ट जो होता है अवे और टूवर्ड्स कैसे प्लॉट करेंगे सर? ओके बेटा, सबसे पहले तो बेटा हम लोग डीआर पोजीशन को प्लॉट करते हैं। आप सबसे पहले ये येलो क्रॉस बनाओगे, डीआर पोजीशन चार्ट पे आ जाएगी। ओके, फिर इसके बाद हम लोग एजीमुथ को ड्रॉ करते हैं। इस केस में एजीमुथ 130 था, हमने ये डीआर पोजीशन से एजीमुथ को ड्रॉ कर दिया। एजीमुथ भी हमारे चार्ट पे आ गया। ओके, यस सर। अब आप ये देखते हो कि जो इंटरसेप्ट हमें दिया गया है वो टूवर्ड्स है या अवे है। अगर वो टूवर्ड्स हो तो आप डीआर पोजीशन से टूवर्ड्स द बॉडी, बॉडी इस डायरेक्शन में है, आप टूवर्ड्स द बॉडी जाते हो जितना हमारा इंटरसेप्ट होता है उतने माइल। और अगर ये इंटरसेप्ट अवे है तो आप डीआर पोजीशन से अवे फ्रॉम द बॉडी जाते हो, मीन्स बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हो। कितना डिस्टेंस? जितना इंटरसेप्ट हमें दिया होता है। जब आप इतना ट्रेवल करते हो तो जिस पॉइंट पे आप पहुंचोगे उसी पॉइंट को आईटीपी बोलते हैं और पीएल उसी पॉइंट में से पास करती है। ओके सर, ओके, नाउ अंडरस्टूड सर। ओके, तो पीएल मतलब इस पे इस पोजीशन लाइन पे होगी, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिलेगी? नहीं बेटा, हमें सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन से एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिलती है, हमें सिर्फ एक पीएल मिलती है। सो ये जो ब्लू कलर की लाइन है, sorry to interrupt you sir, only one position line cannot give a position, correct sir? We need at least 2 to 3. यस बेटा, यू आर करेक्ट। वन पोजीशन लाइन कैन नॉट गिव यू ए पोजीशन। पोजीशन निकालने के लिए कम से कम 2 पीएल चाहिए। सर मेरा एक ये लास्ट क्वेश्चन था कि अब जब हम लोग शिप्स पे होते हैं सर तो हम लोग सर एक इंटरसेप्ट से करते हैं, फिर सेकंड पोजीशन हम लोग लॉन्ग बाय क्रोन से लेते हैं सर। सो इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है सर कि जो हाँ वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पोजीशन जो होगी वो सेलेस्टियली करेक्ट होगी या नहीं होगी सर? क्योंकि ये अलग मेथड से लिया गया है, वो अलग मेथड से लिया गया है सर। ओके बेटा, पीएल किसी भी मेथड से ली जाए, लॉन्ग बाय क्रोन से ली जाए, इंटरसेप्ट से ली जाए, तो वो करेक्ट होगी। आपको 2 पीएल मिल गई, चाहे वो दोनों किसी भी मेथड से हों। एक लॉन्ग बाय क्रोन से है, दूसरा इंटरसेप्ट से है, तीसरा लाइट हाउस की बियरिंग है, चौथा ट्रांजिट बियरिंग है। इनमें से कोई भी 2 पीएल अगर आपको मिल जाएं तो आप उनको कंबाइन कर सकते हो, मींस जहां पे वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वही आपके शिप की पोजीशन होगी। ऐसा नहीं है कि दोनों पीएल एक ही मेथड से होनी चाहिए, ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके सर, ओके सर। हाँ बोलो बेटा। सर इस पोजीशन ब्लू वाली जो पोजीशन लाइन है इस पे ऐसा कोई भी पॉइंट जो कि 3 माइल्स अवे एंड 90 डिग्री होगा तो वो तो एक ही पॉइंट होगा ना सर? तो हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं पूरी पोजीशन लाइन पे कहीं भी पोजीशन हो सकती है? जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करे वो तो एक ही पॉइंट है ना सर, तो वही होगा पोजीशन। तो नहीं बेटा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो है आईटीपी, वो हमारी पोजीशन नहीं है, वो इंटरसेप्ट टर्मिनल पॉइंट है। और ये इंटरसेप्ट टर्मिनल पॉइंट क्या होता है? ये इंटरसेप्ट टर्मिनल पॉइंट हमें सिर्फ ये बताता है कि पीएल कहाँ से पास करेगी, ये हमारी पोजीशन नहीं होता है। ओके, हमारी पोजीशन तो इस लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकती है, और इनफैक्ट इस लाइन के बाहर भी ये एरो ये बता रहा है कि इस लाइन को अगर आगे भी एक्सटेंड कर दिया जाए तो हमारी पोजीशन आगे भी हो सकती है। ये कंडीशंस मतलब पीएल के लिए है ना कि पोजीशंस के लिए? यस बेटा, दैट इज राइट। सारी की सारी कंडीशंस पोजीशन लाइन के लिए हैं, पोजीशन के लिए नहीं। ओके ओके, वेरी गुड। सो अब ये सब समझ में आ गया बेटा, और कोई डाउट?
Very good. Great. So through these couple of examples, I hope it's clear to us. We need to remember the table which we had made for celestial PLs. And depending on the method used for solving the site, we will have to recall the position through which to draw the PL. And the direction of PL in each case is going to be perpendicular to azimuth. Okay, beta. So that completes the position lines concept. So it is good that position line concept is done. So अब बेटा इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आता है करंट और विंड का. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चार्ट वर्क का, करंट एंड विंड. सो इसमें हम लोग सबसे पहले तो कुछ एक डेफिनेशंस देखेंगे. व्हाट इज़ ए फिक्स, व्हाट इज़ ए डीआर, व्हाट इज़ ए एस्टिमेटेड पोजीशन ईपी. फिर हम देखेंगे सेट एंड रेट क्या होता है करंट का. फिर हम देखेंगे विंड का लीवे क्या होता है. ये सारे वर्ड सुने हुए हैं बेटा? यस सर. हाँ सर. वेरी गुड. सो ये सारे वर्ड्स को हम लोग पहले समझेंगे कि ये क्या होते हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनको यूज़ करके हम लोग कैसे वेक्टर ट्रायंगल बनाते हैं. अब हम एक ट्रायंगल बनाने वाले हैं. ये ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं. CTS कोर्स टू स्टीयर, CMG कोर्स मेड गुड और तीसरी साइड होती है करंट. सो ये ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे. अब बस आप मुझे ये बताओ, हमारे पास अबाउट 10-1 मिनट का टाइम और है. हम ये डेफिनेशंस में आगे बढ़ जाएं. शैल वी गो विद दीज डेफिनेशंस और यू वांट टू स्टार्ट देम इन द नेक्स्ट लेक्चर, जैसा आप बोलोगे. सर कर लेते हैं सर, अगली क्लास जब होगी थोड़ा सा रिफ्रेश करके फिर आगे चल पड़ेंगे. वेरी गुड बेटा. सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स. यस. ओके. So beta, I am setting up the video and इसमें हम सबसे पहले definitions देखेंगे. What we mean by a fix or a observed position, what is a DR position, what is a estimated position. किस लिए बेटा, बड़े अच्छे दिख रहे हो. कहाँ घूम रहे हो बेटा? सर प्रीपेड मीटर का रिचार्ज खत्म हो गया था, रिचार्ज कर रहा हूँ बाहर निकल के घर से. ओके, ऑल राइट. ठीक है बेटा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ. सो बेटा पहली डेफिनेशन, व्हाट इज ए फिक्स और ए ऑब्जर्व्ड पोजीशन. Fix or observed position, and this is the position of a ship that is obtained by intersection of 2 or more position lines, intersection of 2 or more position circles, intersection of 1 position line and 1 position circle. I'm sure you would have watched the earlier videos on position lines and position circles and would by now be comfortable with the concept of PLs and PCs. Or a position that is obtained by a reliable electronic navigational aid like GPS, which may provide the position in its coordinates of latitude and longitude. A fixed position or an observed position is a confirmed or validated position.
It's represented on the chart with a symbol of a dot and the circle surrounding it. The dot in the center represents the position of the ship. And if we want to indicate the time for which the fix has been marked, it can also be indicated against the symbol as you can see on your screen out here. बेटा इसमें हमने अभी पोजीशन सर्कल्स का कॉन्सेप्ट नहीं किया है, ये मैंने जानबूझ के आपको नहीं कराया है क्योंकि मैं पहले आपको अभी तक जो हमने किया है ना इस पे एक असाइनमेंट देने वाला हूँ, एक्सरसाइज देने वाला हूँ। जब आप उन कॉन्सेप्ट्स को चार्ट पे प्लॉट करके पक्का कर लोगे फिर हम पोजीशन सर्कल के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। सो जस्ट गो थ्रू दीज पॉइंट्स एंड लेट मी नो इफ यू हैव डाउट्स। Sir, I have one doubt. Sir, let's say we are given a situation where they have said that the ship position is marked 3 miles at this bearing from this particular buoy. So will that be a fix or that will be a DR? बेटा बॉय से आपको उन्होंने बियरिंग और डिस्टेंस ऑफ दे दिया? जी सर। ओके, अब बेटा बस इसमें एक चीज़ मैं बोलूँगा, नॉर्मली जो बियरिंग और डिस्टेंस लिया जाता है हम बॉय को अवॉइड करते हैं। इट इज़ टेकन फ्रॉम ए आइलैंड और ए लाइट हाउस, बॉय को अवॉइड किया जाता है। बट जब आपको बियरिंग और डिस्टेंस मिल गया और आपने उसे चार्ट पे प्लॉट कर दिया तो ये एक फिक्स होगी, इट विल बी ऑब्जर्व्ड पोजीशन। ओके ओके ठीक है सर। अब आपको किसी के माइंड में डाउट आ सकता है कि बॉय को क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि बॉय जो है बेटा ये नेचुरली फिक्स नहीं होता है, इसको हम लोग एंकर के साथ फिक्स करते हैं सी बेड में। एंड देयर आर चांसेस कि अगर बहुत स्ट्रॉन्ग रफ वेदर हो या करंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो ये बॉय ड्रिफ्ट कर सकता है। ओके यस सर, अंडरस्टूड सर। ओके बेटा, लेट्स मूव अहेड। The next one is DR position or the dead reckoning position, which is obtained by factoring in only the ship's displacement caused because of the course she steered and the engine distance that she has covered from a last known fix. So to mark the DR of the vessel, we must know the last known fix. We must know the course or courses steered during that interval since the last known fix and the engine distance that has been covered. DR position on the chart is represented by a cross. And if the time has to be represented for the DR, it can also be marked next to the symbol. DR position does not factor in effect of any external force like current or wind experienced by the ship. Okay, so just go through these points, beta. Let me know if there is any doubt. थर्ड लाइन। ओके बेटा, इसमें क्या डाउट है? तो करंट और विंड ऐड हो गई तो डीआर मिलती है ना सर, इसमें ये डज नॉट क्यों लिखा हुआ फिर? नहीं बेटा, करंट और विंड अगर आपने ऐड कर दिया ना तो फिर ये एस्टिमेटेड पोजीशन बन जाती है। बिना करंट और विंड के जो पोजीशन हमें मिलती है वो होती है डीआर। ओके सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ बेटा? सर बट जैसे कि मैं शिप चला रहा हूँ, इसमें लिखा है कि बाय द कोर्स स्टीयर्ड एंड द इंजन स्पीड, तो जैसे मैं चला रहा हूँ तो मेरे को ये दोनों फैक्टर तो लग रहे हैं ना, मेरे को विंड और करंट दोनों लग रहे हैं, तो मेरी पोजीशन तो वो ईपी और डीआर में फर्क कैसे रह गया सर? ओके बेटा, ईपी और डीआर में फ़र्क तो बड़ा सिंपल है। डीआर में हमने विंड और करंट का इफेक्ट कंसिडर नहीं किया है, अगर कंसिडर कर लेंगे तो वो ईपी बन जाएगी। ये तो फ़र्क है दोनों में, फ़र्क समझ आ गया? तो सर जैसे मैं बोलूँ कि मैं 292 जा रहा हूँ और 10 नॉट की स्पीड से जा रहा हूँ, तो अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो ये मेरी डीआर पोजीशन होगी जो मेरे 1 घंटे बाद मिलेगी। और अगर मैं विंड और करंट अगर लगा दूं जिस भी साइड से लग रहा है,
मेरे को वहां पहुंचना चाहिए था, तो मेरी ईपी पोजीशन वो हो जाएगी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सही बोल रहे हो एकदम। ओके सर। Okay, okay. So we have done DR also. So let's give it a break, beta. We are almost at 25. So let's stop it here and next lecture हम यहाँ से ही आगे continue करेंगे. So this is all for this particular session. Any more doubts in the mind? आप बोल रहे हो डिस्प्लेसमेंट और इंजन स्पीड, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ सर विदाउट विंड एंड करंट का? बेटा इंजन तो चल रहा है ना हमारा, वो वो करेगा तो फिक्स हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट। बाद में अगर जहाज रुक जाएगा तो फिक्स हो गया ना पोजीशन, तो जहाँ पे रुक गया। हाँ बेटा, अगर आपका इंजन रुक गया है और आप नहीं चल रहे हो तो आपकी डीआर वो ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ओके सर। ओके ओके बेटा, सो लेट्स टेक अ ब्रेक. वी विल कंटिन्यू with our discussion in the next lecture. Till then, bye bye. Bye, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, beta. Thank you. Bye bye.